الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، پیارے دوستوں، میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اب صرف 3 دن باقی ہے، آج، کل اور پرسوں. بیچ میں ایک دن پھر 11 تاریخ کا پروگرام یہاں پر موقوف رہے گا. پھر انشاءاللہ منگل کی رات کو آخری ایک پروگرام رہے گا. اس میں کچھ شروعات کی میں نے تحقیقاتی چیزیں میں نے آپ کے سامنے جو بھی اللہ نے یاد دلایا پیش کرتا چلا. اس کے بعد کچھ میری ماں بہنیں بہت سننے آتی ہے، ان کے لیے بھی میں نے 3 دن تک ایک مسلسل عنوان پیش کیا. سوچ کے لایا ہوں میں، یہ رہے گا ایمان کی دولت. دولت تو 2 قسم کی ہے. ایک تو وہ دولت جس کو ہم کرنسی کہتے ہیں، نوٹ کہتے ہیں، سکے کہتے ہیں، جو دنیا کی بازاروں میں چلتی ہے. اور ایک وہ دولت ہے کہ جو بازار مصطفیٰ میں چلتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو زیادہ تر جب تواریخی چیزیں پیش کرتا ہوں تو اس پہ واقعات کم رہتے ہیں، دلیلیں زیادہ. اور جس وقت میں ایسے واقعات اور ان دلیلوں کو پیش کرتا ہوں تو اس میں چھوٹے چھوٹے واقعات اور دلیلوں کے ذریعے سے آپ کے دل اور آپ کے دماغ تک اس چیز کو پہنچانے کی میں اپنی ناقص کوشش کرتے رہتا ہوں. اور واقعات کے ذریعے سے یہ پڑھے لکھے لوگ بھی اور جو نہیں پڑھے لکھے ان لوگوں کے دل اور دماغ پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے. اس لیے تو قرآن کریم کے سورہ یوسف کے آخری حصے میں خود اللہ جل شانہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ پرانے زمانے کے جو واقعات، میں اپنے الفاظ اس قرآن کی تفسیر کے یا اس کی ترجمانی نہیں کر رہا، میں اس کا مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ پرانے لوگوں کے واقعات جو ہے وہ آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے. اس لیے ان واقعات کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور وہی سلسلہ میں بھی چلاتا ہوں. اور اس کو غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور خود ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو بیان کی ہے. لہذا آج جو چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی ایک پہلی حکایت پیش کر دوں کہ یہ پرانے واقعات کے ذریعے سے ہمیں کتنی سمجھ آتی ہے اور اس سے کیا عبرت ملتی ہے. پہلی چیز مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنگل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے، جنگل میں ایک شیر تھا. وہ شیر جو ہے وہ آس پاس کے علاقے میں پورے جنگل کے اس میں اس کا ایک سلطنت جیسا چل رہا تھا. اس شیر کو ویسے بھی بادشاہی کہا جاتا ہے جنگلوں کا.
उसके हाथ के नीचे 2 जानवर और थे। वैसे तो बहुत से जानवर थे, मगर जो चमचे जिसको कहते हैं आज की जबान में बंबई की, उसके हिसाब से 2 जानवर खास थे। एक तो थी लोमड़ी और एक था भेड़िया। लोमड़ी जो थी वो तो बड़ी होशियार, मगर भेड़िया जो था वो जरा जल्दबाज। एक मर्तबा की बात है कि वो शेर ने एक शिकार किया, एक बड़े जानवर का, एक मध्यम जानवर का और एक छोटे जानवर का। 3 शिकार, लाश पड़ी हुई है, खून बह रहा है उसका। शेर सामने बैठ गया, एक तरफ लोमड़ी को बिठाया, एक तरफ भेड़िए को बिठाया, और भेड़िए से पहले वो कहने लगा कि बता कि ये जो 3 जानवर मैंने जिसको इस वक्त शिकार किया है, इसमें से मैं किस वक्त क्या क्या खाऊं, इसमें से कौन सी चीज और तकसीमात कैसे हो सकती है। भेड़िया जल्दबाज था, उसने ये कहा कि बड़ा जानवर आपने मेहनत की है, बड़ा जानवर आप खा जाइए, शाम तक आपको चलेगा। बीच का जानवर जो है वो मैं खा जाऊंगा, और छोटा जानवर जो है बकरी वगैरह तो इसको ये आप लोमड़ी को दे दे, इसका पेट भर जाएगा। शेर ने गुस्से में आकर ये कहा कि कमबख्त, शिकार मैंने किया, जंगल का बादशाह मैं हूं, शिकार मैंने किया, मेहनत मेरी है, और तू मुझे इस किस्म की राय देता है, मुझे मशवरा ऐसा देता है कि ये अभी ये मेरे लिए और ये तेरे लिए, यानी तेरे और मेरे के मामला तो मेरे पास करने लगा। कमबख्त, तुझे तो जिंदा रहने का हक नहीं कहकर शेर ने एक हाथ मारा और उसको छील डाला, वो वहीं पर मर चुका। लोमड़ी कांप कर रह गई। थोड़ी देर के बाद भी जब उसकी लाश भी तड़पने लगी और खत्म हो गई भेड़िए की, अब शेर ने कहा कि अब बताओ कि अब क्या करना चाहिए, तुम इसका तकसीमात करो। लोमड़ी ने कहा कि अरे मुझे क्या इतनी अक्ल है, मगर फिर भी मैं इतना कह दूं कि आपने बड़ी मेहनत की अभी, और इसके साथ भी बड़ी बहस हुई, दिमाग खराब हो गया होगा आपका, इसलिए बेहतर है कि बड़ा जानवर आप अभी खा लें। कुछ वक्त के बाद फिर भूख लगेगी आपको तो वो बीच का जानवर उस वक्त खा लेना, और फिर शाम को सोने के पहले आप वो छोटा जानवर खा लेना। उस शेर ने पूछा फिर तेरा क्या? अरे मैं तो इसमें बची कुछ हड्डियां जो होगी मुझे चल जाएगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो शेर ने कहा बड़ी अकल की तूने बात कही, बता तो सही कि अकल तुझे किसने दी। तो कही जो भेड़िया मर गया, उससे मरते मरते हमको समझाते गया कि जरा भी टेढ़ा चला तो याद रखना कि मामला, अगर इससे भी अगर मैं इबरत नहीं हासिल करता तो मुझसे जाहिल और कौन हो सकता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि हमसे पहले जितने वाकयात गुजरे हैं, जिसमें जो जो वाकयात गुजरे हैं उसी हर वाकयात के अंदर एक इबरत मिलती है, इंसान को उसमें से कुछ न कुछ लेना चाहिए। लिहाजा मैं आपके सामने जो दौलत के और ईमान के मामलात के जो वाकयात है एक के बाद एक पेश करने की कोशिश करूंगा, जिसमें कुछ बुजुर्गान दीन के, कुछ आज के जमाने के और कुछ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सबके वाकयात एक के बाद एक पेश करूंगा। दौलत जो है मैंने पहले अर्ज कर दिया कि 2 किस्म की, एक तो दुनिया की बाजार में चलती है जिसको हम करेंसी कहते हैं, सोना और चांदी है, और दूसरी करेंसी वो है कि जो बाजार मुस्तफा में चलती है। दोनों करेंसी में फर्क है, एक में गवर्नर की साइन रहती है रिजर्व बैंक के, और वो जो है अमल जो आप और हम करते हैं जैसे नमाज रोजा, ये भी एक करेंसी है। जिस तरीके से अगर कोई खत को अगर आप भेजते हैं, बेहतरीन किस्म का कवर आप बना ले, इसको बेहतरीन खत अंदर हो, बेहतरीन किस्म का कवर भी हो, मगर आप उस पर टिकट नहीं लगाते और एड्रेस उसका सही नहीं है, तो यकीन मानिए कि वो कवर कहीं पहुंच नहीं सकता, रिटर्न आ जाएगा आपको। और या तो परदेश का है तो परदेश जाएगा नहीं, रास्ते में फाड़ दिया जाएगा, क्योंकि वहां से ये दंड वसूल करके यहां आ नहीं सकते। हमें भी उस दुनिया में जाना है जो परदेश है, जिस मुल्क को छोड़कर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हमें इस दुनिया से उस दुनिया में जाना है, लिहाजा वो करेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जो यहां की करेंसी कमाने के बाद में भी वहां चलती हो, ये इसका मकसद होगा। और एक बात जरूर है कि दौलत जो है
दुनिया की और आखिरत की, ये सब अल्लाह वालों ने इस चीज का खुलासा करके हमारे सामने पेश किया है। अखबारों में कभी पढ़ते हैं कि 1.5 रुपए की रकम बार वाले के पास बाकी थी, बार वाले ने किसी को चाय वगैरह दी थी, उसकी बाकी थी, 1.5 रुपया वो दे नहीं सका तो बार वाले ने उसको चक्कू मार दिया। कुछ ही दिन के पहले अखबार में मैंने पढ़ा। भाई और भाई के झगड़े होते मालो दौलत के वास्ते, कितने मुकदमे आप कोर्ट में जाके तलाश कीजिए और वहां की फाइलों को तलाश कीजिए तो ज्यादातर आपको इसी किस्म के इंसान मिलेंगे कि जो एक दूसरों के ऊपर, भाई भाई सिर्फ माल दौलत के वास्ते ही एक दूसरों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। मालूम ये हुआ कि ये सब चीज उसी वजह से है शायद। तो ये दुनिया की दौलत ऐसी है, और दौलत बुजुर्गान दिन इसको 2 लात कहते हैं। दौलत का मतलब 2 लात। जब वो किसी के पास आती है तो पीठ पर लात मारती है दौलत, ऐसी लात मारती है कि वो इंसान का सीना जो फूल जाता है और इतना अकड़ जाता है कि दुनिया के सामने सलाम करने को भी उसको नहीं आता, मगर वो चीज उसमें नहीं आती, खाकसारी उसमें खत्म जाती है। पीठ पर लात दौलत मारती है तो इंसान का ये सीना फूल जाता है और अपने आप को ये समझने लगता है कि मैं बहुत खुश हूं। और जब ये दौलत चली जाती है तो पेट पर लात मारती तो इंसान को इतना झुका देती है कि दुनिया भर के इंसान मिलकर भी अगर उसको उठाना चाहे तो उठा नहीं सकते। ये दौलत की 2 लात है, एक आती है तब लात पड़ती है और एक जाती है तब लात पड़ती है, दोनों चीजें। बहरहाल एक वाकया मैं आपको सुना दूं। दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग का हरे भरे या मामू भांजा इस किस्म का नाम, मगर हकीकत में इनका नाम है हजरत सरमूद रहमतुल्लाह अलैह। चंद अल्लाह वाले ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल मजजूब किस्म के, सारी चीज को जो जज़ब कर जाते हैं, इसको मजजूब कहते हैं। उनका यह आलम था कि वो दरवाजे के पास बैठते, कभी मस्जिद के मेन गेट जो था उसी दरवाजे के बाहर ही वो खड़े रहते थे, वही बैठते थे और वही सोते थे। और दुनिया इनको जानती थी, इसलिए कई लोग इनके पास इनकी खिदमत में आते थे और ये कभी किसी से बातचीत नहीं करना, लिहाजा वो हजरत सरमूद रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे के पास वहां पर बैठते थे, खड़े रहते थे। एक दिन की बात है कि बादशाह सलामत खुद चाहते थे कि हजरत सरमूद रहमतुल्लाह अलैह को मिले, इसलिए खास कासिद को भेज के कह दिया कि आज की मगरिब की नमाज हम यहां पर आपके यहां पढ़ेंगे। बादशाह सलामत आने वाली ये पता चला तो इमाम साहब ने भी अपने हुजरे शरीफा में बैठकर बहुत अच्छी तरह से कुरान की तिलावत और उसका बिल्कुल रटन शुरू कर दिया और अच्छी तरह से बेहतर किस्म से ये कुरान पेश हो सके इसकी मेहनत शुरू कर दी। नमाज के लिए जब खड़े हुए तो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने काफिले के साथ में आए हैं, मस्जिद में सब खड़े हो गए। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में दाखिल हुए, पहली सफ में खड़े हो गए और इकामत शुरू हुई, नमाज शुरू हुई। मौलाना साहब ने बेहतर किस्म से किरात का जो अपना ढंग था, अपना फन पेश किया और बेहतर किस्म की नमाज को अदा की। हजरत सरमूद रहमतुल्लाह अलैह भी पीछे आकर खड़े हो गए थे, सिर्फ एक लुंगी बांधी हुई है और उसी हालत में अंदर आके खड़े हो गए। जमात की नमाज पढ़ने के बाद में वो फौरन बाहर चले आए, दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। जिस वक्त इमाम साहब वगैरह सब मुसाफा करके आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने काफिले के साथ निकलकर बाहर चले गए और उसके बाद में पब्लिक जो थी वो बाहर निकल थी। पहले बादशाह सलामत को जाने दिया, सवारी पे बैठ गए, सरमूद रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात क्यों चल रही। जैसी पब्लिक निकलने लगी और इमाम साहब के साथ में सबके सब तारीफ करने लगे कि माशाल्लाह क्या आज आपकी किरत के दिल हिल गया, हमारा नमाज में दिल लग चुका, ये है वो है, सब बात तारीफ करने लगे। तो सरमूद रहमतुल्लाह अलैह ने वहां मस्जिद के दरवाजे के पास खड़े होकर चीख मार मार के कहने लगे, ऐ लोगों तुम्हें खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, ये मस्जिद के इमाम का खुदा जो है वो मेरे कदमों के नीचे जिसको देखता हूं वो देख ले। लोग कहने लगे आप ये क्या कह रहे हैं, खुदा की शान में आप गुस्ताखी कर रहे हैं। वो कहता है मैं कसम खा के कह रहा हूं कि इस मस्जिद का इमाम जो है उसका खुदा जो है वो मेरे कदमों के नीचे है। लोगों ने जाकर आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को खबर की, आपने हुक्म कर दिया कि जाओ सुनो, अगर बात सही है तो इनको कत्ल कर दो, ये तो कुफ्र की बात है। अगर लोग सुनेंगे दुनिया के अंदर अल्लाह की ऐसी इस किस्म से बेहुरमती करने वाला शख्स तो कोई नहीं देखा, इसको कौन अल्लाह वाला कहेगा। जाकर कुछ लोग गए, काजी साथ में गए, उनसे पूछा कि आप क्या कहते, कहा मैं अभी भी मैं कहता हूं कि मस्जिद का इमाम जो है उसका खुदा मेरे कदमों के नीचे है।
और इनको गर्दन उड़ा दी गई। जैसे गर्दन उड़ाई उसके बाद में कुछ उलमा इकराम को रात को पता चला तो रातों रात पहुंचे आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास और उनसे कहने लगे कि आपने इसमें जल्दबाजी की है, जरा आपको पूछना तो था किसी आलिमों से कि ये क्या कह रहे हैं, ये अल्लाह वाले थे, इनकी बात बिल्कुल अपनी जगह पर सही हो सकती है। तो क्या मैंने जुर्म किया? कि बेशक आपने जुर्म किया। दलील क्या है? कि हम चलते हैं। दूसरे दिन सुबह सब आदमियों को लेकर मजदूरों को लेकर गए और आरस की तख्तियां जमीन पर जो थी उसको कहा इसको उखाड़ो, उसको निकालकर जमीन को खोदो जहां हजरत सरमुद रहमतुल्लाह अलैह बैठते थे। जब आरस की तख्तियों को निकाला और जमीन को खोदनी शुरू कर दी तो अंदर से इतना बड़ा एक बर्तन निकला कि जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। जाकर बुजुर्गों ने, सब बड़े बड़े इमाम और बड़े बड़े उलमा किराम थे, उन्होंने जाकर इमाम साहब को बुलाया ईशा की नमाज को, जाकर उनसे कहा कि भाई क्या बात है, क्या ये बात सही है जो इन्होंने कहा है? तुम्हारी समझ में कुछ आया? का मुझे नहीं समझ में आया। तो एक बुजुर्ग बैठे तो उन्होंने कहा कि आपने कल जो नमाज पढ़ाई, आप कसम खाकर मस्जिद में बैठे, आप कसम खा के कहिए कि किस नीयत से आपने नमाज पढ़ाई। तो थोड़ी देर के लिए इमाम खामोश हो गए। उसके बाद में कहने लगे, हाँ कल की नमाज पढ़ाई तो बहुत अच्छी मैंने, मगर मेरी नीयत ये थी कि जितनी अच्छी किरात पढ़ूंगा मुझे आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह इनाम और इकराम से माला माल कर देंगे। का बस यही इनका मकसद था सरमुद रहमतुल्लाह अलैह का, कि इन्होंने नमाज खुदा के लिए नहीं पढ़ाई, सिर्फ माल और दौलत के वास्ते पढ़ाए। इसलिए वो कहते थे कि इनका खुदा जो है मेरे कदमों के नीचे। ये बात अपनी जगह पर 100% सही थी। हजरत सरमुद रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर ही उनकी मज़ार आज भी मौजूद है। मकसद यह है कि दुनिया के मामलात जो है, दुनिया वाले हैं, इनका यह ख्याल, और इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन एक ऐसा साया अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से होगा कि जो 7 किस्म के इंसान उस साये में होंगे, उस साये के सिवा और कोई साया नहीं होगा। सूरज बिल्कुल नीचे पर आया होगा, जमीन लाल तांबे की जैसी हो जाएगी, और उस हालत में इंसान की क्या हालत होगी। थोड़ी गर्मी बढ़ जाती मई के महीने या जून के महीने में तो हमारी हालत ये खराब हो जाती है, हमको परेशानी हो जाती है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम चाहते हैं किसी एयर कंडीशन रूम में जाकर बैठ जाए। इतनी गर्मी दुनिया की बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो लाखों मील दूर सूरज है, और उस आलम में कि जब बिल्कुल करीब में सूरज आ जाएगा और जमीन तपिश की वजह से लाल तांबे की जैसी हो जाएगी, उस वक्त क्या आलम होगा कि जब यह आलम हमारे सर पर होगा। यही तो चीज है, और कयामत के दिन इसका हिसाब किताब हमको देना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि उस दिन साया मिलेगा सिर्फ 7 आदमी को। उसमें से एक इंसान वो होगा कि जो मस्जिद में जाएगा नमाज के लिए, नमाज पढ़ने के बाद जब बाहर आएगा तो दिल तो उसका मस्जिद में लगा होगा, जिस्म उसका मस्जिद के बाहर होगा। फिर चाहेगा कि कब अजान और कब मैं मस्जिद में मेरे रब के सामने अपने सर को झुका दूं, ये उसका ख्याल होगा। हमारे मामला तो इससे उल्टे हैं कि हमारा दिल जो है वो कभी दुकान पर, कभी बीवी बच्चों पर, कभी माल दौलत के ऊपर, कभी हिसाब किताब के ऊपर, कभी दुनिया कैसे बनाना है इसके ऊपर पड़ा है। जिस्म तो बेशक हमारी मस्जिदों में जरूर आते हैं, ये रुकू भी करते हैं, सुजूद भी करते हैं, सलाम भी फेरते हैं, मगर खुदा की कसम दिल पर इसका कोई असर नहीं होता। इसकी वजह यही है कि हमने दुनिया के पीछे अपने ईमान को बर्बाद किया है। मैंने आपको कहीं तैमूर लंग का एक वाकया सुनाया था, बड़ा इबरत अंगेज। यही वो तैमूर है कि जिसे ताजिए की रस्मों को शुरू की। तैमूर लंग कहते हैं, ये लंगड़ा था, एक पैर उसका खराब था, टूटा हुआ था। तैमूर लंग, उसकी इस वाक्य को एक बार ऐसी हुआ कि वो ईरान की तरफ का था। वो उसके दिमाग के अंदर एक दिन बड़ी खुशी का मौका था, बड़ा जश्न मनाया था उसने, बड़ी खुशी का दिन था कोई उसका। उसे जश्न दरबार में अपने भरने को कहा। तैमूर लंग ने जिस वक्त ऐलान कर दिया कि मेरे दरबार में एक बड़ा जश्न है, तो वजीर भी चाहता था कि चलो जब इनका पैसा खर्च हो रहा है, इनका माल खर्च हो रहा है, तो फिर हम भी मजाक क्यों न सही तौर पर उड़ाए। वजीर ने कहा कि एक काम कीजिए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक तवाइफ नाचने वाली को मैं लेकर आऊं। कल लेकर आइए। जश्न शुरू हुआ और नाचने वाली ने अपना नाच दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया इसको आर्ट कहती है। सबसे बड़ी चीज के तवारीख में यह नोट है कि यह नाचने वाली नाचे और बादशाह देखता रहे।
کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بزرگوں کے اور ان خلفائے راشدین کے معاملات اور ان کے کردار ہے، اور کہاں یہ سلطانوں کے کردار کے جنہوں نے دنیا کے سامنے آج مسلمانوں کے نام پر ایک کلنک کا ٹیکا لگا دیا۔ آج بھی ناچ اور مجرے کے لیے تو بڑا شوق ہے، آپ مجروں والوں کا جا کے دیکھ لیجئے کہ وہاں پر زیادہ تر اپنی حلال اور حرام کی دونوں دولت کو لٹانے کے لیے وہاں پہ تیار ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا ڈر دکھایا کہ مجھے چھپے ہوئے شرک کا ڈر ہے، پرانی قومیں جو تھی برباد ہوئی شرک کی وجہ سے، مگر مجھے میری امت کے واسطے چھپے ہوئے شرک کا ڈر ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی اشاعت کے اوپر ایک صحابی نے سوال کیا کہ سرکار کیا مطلب اس کا کہ مال اور دولت کا بھوچال تمہارے پاس اتنی بڑھ جائے گی کہ ایک جام تم رکھو گے اور دوسرے جام کو تم اٹھاؤ گے، ایک پیالہ رکھو گے دوسرا اٹھاؤ گے، صبح ایک جوڑی کپڑا ہوگا اور شام کو دوسری جوڑی تمہارے جسم پر کپڑا ہوگا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ آج یہ چیز ہے یا نہیں؟ آج جا کر دیکھیے بیچاری عورتیں کہ جن کی شادی ہوئی ہے ابھی 6 اور 7 مہینے اور 8 مہینے نہیں گزرے، گھر کے اندر بیوہ کی زندگی کاٹتے اور رات کو مرد جا کر تباہ کر کوٹے پر پڑے ہیں۔ مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس کی زندگی ایسی ہو کہ جس کو دیکھ کر دنیا کو عبرت حاصل ہو۔ مسلمان کا مقصد یہی ہے، فرما بردار۔ کس کا فرما بردار؟ یہ تو طوائف کے فرما بردار بن چکے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نہیں ہوئے۔ زندگی ایسی کاٹو کہ جس سے دنیا کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کر کے بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، دیکھو ہماری یہ زندگی ہے۔ تیمور لنگ نے جب طوائف کو دیکھا بڑا خوش ہو گیا، ناچنے لگی وہ۔ آج بھی مسلمانوں میں بھی لڑکیوں کو ڈانس سکھایا جاتا ہے، اس لیے کہ بھائی شاید کوئی تبلچی کے گھر پہ شادی ہو جائے لڑکی کو تو وہاں بھیجنے کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو۔ خدا کی قسم شمس آتی ہے مسلمانوں کے نام کے اوپر کہ جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت جس کی مائیں کرتی تھی، جن کی اولاد کو گود میں لے کر قرآن اور حدیثوں کی باتیں اور صحابہ کرام کے باقاعدہ ان کی شجاعت کی باتیں وہ پیش کرتی تھی، وہ ماؤں کے بدلے میں آج یہ عالم ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ناچنے والی ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اس میں لڑکیوں کا بھی کیا قصور؟ اس ماڈرن ماں باپوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طریقے سے اس ایسے رنگ دلانے کی کوشش کی ہے۔ ناچنا شروع ہوا، جب طوائف نے ناچ پورا کر لیا تو یہ ہوا کہ آخری سلام دے کر وہ سامنے بیٹھ گئے۔ یہاں اس کا تیمور لنگ کا تخت لگائے اور اتنی دوری کے اوپر وہ طوائف بیٹھی ہوئی ہے، ساجندے جو بجانے والے تھے وہ سب آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تیمور لنگ نے اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کا ایک ہار نکالا اور ہار وہ نکال کر اس نے پھینکا۔ جب پھینکا تو بالکل قریب سامنے وہ ہار جا کے اس کے پھسل کر، فرش بہت اچھا تھا، دربار کا فرش تھا، زمین کے اوپر پھسل کر وہ موتیوں کا قیمتی ہار اس کے بالکل قریبی جا کے پہنچا۔ اور وہ لڑکی جو ہے وہ ناچنے والی طوائف زمین پر ایسے اندھا جو آدمی دیکھتا ہے نابینا کس طریقے سے ہاتھ زمین پر مار کے دیکھتا ہے، اس طریقے سے زمین پر ہاتھ ڈال ڈال کر وہ تلاش کر رہی ہے۔ تیمور لنگ ہنس کر اپنے وزیر سے کہتا ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ سامنے موتی کا ہار پڑا، اتنی نظر کمزور ہے کہ سرکار یہی تو بات ہے کہ یہ جو ہے یہ بالکل بادشاہ سلامت یہ اندھی ہے۔ تیمور لنگ نے کہا اندھی ہے؟ ایک خادم کو حکم دیا کہ ذرا اس کو موتی کا ہار اس کے ہاتھ میں دے دو۔ ہاتھ میں جب موتی کا ہار دیا، قریب آؤ میرے، وہ طوائف قریب آئے۔ جب طوائف قریب آ گئی، کرنش بجا کر سامنے کھڑی ہے۔ تیمور لنگ سوال کرتا ہے تمہارا کیا نام ہے؟ تو وہ کہتی کہ دولت، میرا نام دولت ہے۔ تمہیں نظر نہیں آتا کچھ؟ کہا نہیں صاحب، آنکھیں تو اتنی اچھی مگر کوئی ایک بیماری میں میری دونوں نظریں ختم ہو گئی۔ آنکھیں بڑی خوبصورت تھی مگر اس کے اندر روشنی نہیں تھی، نورانیت نہیں تھی۔ کہا بہت اچھا تم نے اپنی کلا اپنی اچھی طرح سے تم نے دکھائی ہے، مگر تعجب ہوتا ہے، بتاؤ تو صحیح دولت، تمہارا نام دولت، دولت اور اندھی؟ یہ تیمور لنگ نے ایک اس کو طنز مارا، دولت اور اندھی۔ تو اس دولت بھی جو طوائف تھی فوراً جواب دینے والی، تو اسے کہا کہ دولت اگر اندھی نہ ہوتی تو تیمور جیسے لنگڑے کے گھر پہ آتی کیوں وہاں پر؟ اب سمجھ لیجئے کہ یہ دولت کہاں آتی ہے۔ دولت کے دو طریقے ہیں، ایک تو صحیح راستے سے آتی ہے اور صحیح راستے پر جاتی ہے،
ایک آتی صحیح راستے پر اور غلط راستے پر اس کو خرچ کیا جاتا ہے. ایک غلط راستے سے آتی تو صحیح راستے پہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے, مگر یہ اللہ کے یہاں پہ قبول نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سمجھ لیجئے کہ غلط راستے ہیں, شراب کی دکان چلا رہا ہے, جوئے کا اس کا اڈا ہے, اور اس کے پیسے کو لے کر وہ اگر خیرات کرنا چاہتا ہے, صدقہ کرنے چاہتا ہے, یا اگر وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اگر زکوٰۃ دینا چاہتا ہے, تو خدا کے یہاں پر یہ حرام چیز کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے اگر حرام کا ہمارا مال بھی ہے, اس کو اگر پاک کرنا چاہے, زکوٰۃ دے تو اس کا قبول نہیں ہوگی؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تمہارے کپڑے پر پیشاب کے چھینٹے لگ جائے اور پیشاب سے اگر تم دھو گے تو صاف ہوگا؟ کہا نہیں, اسی طریقے سے یہ مال ناپاک ہے, اس طریقے سے کام ہو نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معاملات جو ہے یہ ہمارے تک اس طریقے سے پہنچے. یہ تیم النگ کا واقعہ ہے, مگر یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں سبھی تیم النگ ہے. ایک صحابیہ جس کا نام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, ایک شوہر ان کا پہلے شاید چل بسا ہے, بہت جوان تھی یہ, اور اس عالم میں ان کا یاد ایسا وقت آ گیا, بڑی صاحب ایمان, بڑی پرہیزگار, بڑی نیک خاتون, اللہ والی. اور وہ عورتیں, وہ خاتون ایسی تھی کہ جن کو دیکھ کر دنیا کے دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی تھی. ایک شخص ہے کہ جنہوں نے ان کے شادی کا پیام بھیجا ان کے پر, ایک عورت کے ذریعے سے شادی کی بات ڈالی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھے ان کے ساتھ نکاح میں نہیں آنا. کچھ مہینے کے بعد پھر شادی کی بات ڈالی تو اس کو بھی انکار کر دیا. تیسرے مرتبہ بھی جب یہ ہوا تو اس وقت بھی انکار کر دیا. تین مرتبہ انکار کرنے کے بعد میں بھی عالم ہی ہوا کہ ام سلیم کے پیچھے وہ شخص تو لگا رہا کہ کسی صورت بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ نکاح کروں, یہ پاک دامن بڑی نیک عورت ہے, اگر یہ میرے گھر میں آ جائے تو معاملہ سارا سلجھ جائے. لہذا انہوں نے محنت تو خوب کی. ایک دن کا واقعہ کے راستے میں بکری کے 2 بچوں کو لے کر, ایک بچہ چل رہا تھا, ایک چھوٹا تھا, اس کو اٹھایا تھا, اور جا کے راستے سے گزر رہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچانک اس بکری جو چل رہی تھی, بچہ جو اس کی کھری میں ایک کنکر گھس گیا تو بچہ لنگڑانے لگا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر اس بچے کو اپنی گود میں لیتی ہے اور کھری میں سے اس کنکر کو نکال کر پھینکتی ہے. جیسے اسے پھینکا کہ وہاں دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے, ذرا سے نگاہ اٹھائی اور فوراً چہرے پر پردہ ڈال دیا, دوپٹہ ڈال دیا. جب وہ صاحب کو دیکھا تو وہی صاحب تھے کہ جنہوں نے ان کے نکاح کے لیے بات چیت ڈالی تھی. کہنے لگے کہ ام سلیم, کیا میں نے 3 مرتبہ تمہارے یہاں پر یہ پیغام نہیں بھیجا؟ تو ام سلیم نے کہا کہ ہاں بھیجا تھا, مگر مجھے پسند نہیں ہے. آخر کس بات کی تمہیں کمی محسوس ہوتی ہے؟ اللہ کا فضل ہے کہ میں تندرست ہوں, جوان ہوں, خوبصورت بھی ہوں. اللہ نے اتنی زمین جائیداد بھی مجھ کو دی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اتنا اللہ نے مجھ کو مال دولت سے نوازا ہے, پیسے ٹکے کی کوئی کمی نہیں. باغیچے باغ اور باغیچے بہت ہے, جانور کے ریوڑ میرے پاس پڑے ہیں, اور کتنے غلام ہے کہ جس کا حساب نے. اتنا مال دولت اللہ نے دیا ہے, اور خاندانی میں بھی تو کوئی کسی قسم کی کمی نہیں. آخر کیوں اس بات کے لیے تم انکار کر رہی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ بس میرا ارادہ نہیں ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے, تم ایک کام کرو, تم جو چاہو تمہاری نکاح میں جو کہو مہر میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. ام سلیم کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں, چہرہ پھرا کر کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم جو میں مہر چاہتی ہوں وہ مہر تم ادا نہیں کر سکتے. کہا تم بتاؤ تو صحیح, اتنی دولت ہے, میں ساری چیز تمہارے نام پہ کر دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ دیکھیے, آپ کے پاس دولت جتنی بھی یہ سب دنیا کی دولت ہے, ابھی تک آپ صاحب ایمان نہیں ہوئے, اور میں چاہتی ہوں کہ میرے مہر کے اندر آپ صرف کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لے تو میں یہ سمجھوں گی کہ تم نے میری شادی اور میری نکاح کی تم نے مہر ادا کی ہے. اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں تمہاری نکاح میں آنے کے لیے تیار ہوں. مجھے تمہاری زمین و جائیداد سے کوئی نسبت نہیں, میں تو چاہتی ہوں کہ صرف ایمان کے معاملات تمہارے اور ہمارے صحیح.
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اگر مرد اگر مشرک ہے اور بیوی اگر صاحب ایمان ہے تو نکاح نہیں دیتی، اگر مرد میں صاحب ایمان ہے اور بیوی مشرک ہے تب بھی نکاح اس کی باقی نہیں دیتی۔ انہوں نے اس وقت انکار کیا، مگر کچھ دن کے بعد میں وہ ایمان لیا ہے اور انہوں نے ام سلیم کے ساتھ میں شادی کی۔ اب بتاؤ کہ اتنی دولت آج کے زمانے میں تو یہی دیکھتے ہم لوگ، لڑکی کی شادی ہوتی تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ ان کے پاس فلیٹ کتنا بڑا ہے، گھر کے نیچے کم از کم اسکوٹر بھی کھڑی رہتی ہے کہ نہیں، گودریج کا فریج ہے یا نہیں اس کے گھر میں، کلر کا ٹی وی ہے کہ نہیں اس کے پاس، وی سی آر اس کے گھر میں اچھا ہے کہ نہیں، نیشنل وغیرہ کا۔ اگر یہ سب چیزیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، اس لیے دے دو، ہماری لڑکی کبھی دکھی نہیں ہوگی۔ مگر بہتر جانتا ہے خدائی کہ جو گھر میں ان چیزوں کو دیکھ کر جو لڑکی کو بھیجتے ہیں، خدا کی قسم وہ فلیٹ کے چاروں دروازوں کے اندر، چاروں دیوار کے اندر گھونٹ کر رہ جاتی ہے، اس کو صرف اپنی سوسائٹی کو بچانے کے لیے ایک لفظ باہر کہہ نہیں سکتی اور اندر گھٹ گھٹ کر اپنے پریشان ہوتی ہے، اس لیے کہ شوہر اس کا اور لڑکیوں کے ساتھ بھی دوستانہ تعلق رکھتا ہے، ان کو گھر پر بھی لے کر آتا ہے، شراب کے جام ان کے گھروں پر بوتلیں کھولی جاتی ہے اور اس لڑکی باہر نہیں کہہ سکتی کہ میرا مرد یہ کر رہا ہے، اس لیے کہ عزت کو دیکھ کر دی تھی، ایمان کو دیکھ کر نہیں دی۔ اگر ایمان کو دیکھ کر دیتے تو خدا کی قسم لڑکی کبھی بھی اس معاملات پہ پیش نہیں آتی تھی، مگر یہ سب چیز کو ہم نے بلا دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابی خاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، ان کی بیٹی ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہو گئی تھی، ایک بچہ تھا جس کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ بڑی تکلیف انہوں نے دیکھی تھی اور اس حساب سے ان کا یہ معاملہ تھا کہ عمر کے پہلے ہی وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور ان کی دونوں آنکھیں بھی چلی گئی تھی۔ پریشانی کا عالم یہ تھا کہ وہ بچہ جو تھا وہ بھی اپنی جگہ پر اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی ہو گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت فرماتے تھے حضرت اسماء کی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس وقت بڑھاپے کے عالم میں جو وہ زمانہ کہ جس وقت حجاج بن یوسف کی بول بالا تھی چاروں طرف اور سلطنت کے اندر بھی بڑی رد و بدل ہو چکی تھی، مکے کے لوگ مدینے جاتے تھے، مدینے کے لوگ مکے آتے تھے، وہیں پر ایک امن تھا، اس کے باہر جہاں بھی جاتے تھے ایک فساد کا برپا مچا ہوا تھا۔ اس عالم کو دیکھ کر لوگ بڑے امن اور چین کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایسے موقع کی یہ بات ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بار حجاج نے قاصد کو بھیجا اور اسے کہا کہ عبداللہ سے کہہ دو کہ ہماری فوج میں شامل ہو جائے، کچھ ہی وقت کے بعد میں ہم جنگ کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نام کے اہل بیت کرام میں سے ایک صاحب ہے جو مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور وہیں کے لیڈر بھی تھے، بڑے لوگ ان کو بڑی عزت سے دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے جو دین پھیلانے کی کوشش کی تھی اپنے حساب سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بیان کرتے تھے، مگر دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ جہاں حق اور سچائی کی بات ہوتی ہے دنیا اس کو بڑی تنگ نظری سے دیکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جس وقت قاصد آیا تو اس سے کہا کہ حجاج نے کہلوا کے بھیجا ہے کہ ہماری فوج میں اگر تم شامل ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں مال و دولت سے خوب مالا مال کریں گے، تمہارے پیر سے لے کر تمہارے سر سے اوپر تک اتنی دولت کا ڈھیر لگا دیں گے کہ تمہاری 7 نسلوں تک بھی تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی، اور اگر تم نے ہمارا ساتھ نہیں اور حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں رہ کر ان مٹھی بھر مسلمانوں کے ساتھ میں رہ کر تم آؤ گے ہمارے سامنے مقابلے میں تو تم جانتے ہو کہ ہماری طاقت کتنی ہے، ہم تم کو کچل کر رکھ دیں گے، اور اگر تم زندہ گرفتار ہو گئے تو ہم پھانسی کے ماشر پر ہم تم کو لٹکا کے رکھ دیں گے۔ یہ سب چیز سنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3 دن کا وقت دیا گیا کہ 3 دن میں ہمیں جواب دے دو کہ تم اس طرف جانا چاہتے ہو یا اس طرف، 3 دن میں یہ فیصلہ ہمیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے پہنچے اپنی ماں کے پاس۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ سے تو دیکھ نہیں سکتی تھی مگر بیٹے کے قدم کے اوپر سے اس کی آواز پر سے پہچان گئی، بیٹے عبداللہ آج صبح سویرے کہ ماں ہاں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں میں
کہ इस वक्त तीसरा दिन है, बहुत परेशान रहा। 3 दिन में मुझको जब जवाब मुझसे नहीं बन पड़ा तो मैं आज चाहता हूं कि मुझको निकलना तो पड़ेगा 2 में से कोई एक जगह के ऊपर। तो मैं आपसे मशवरा लेने को आया हूं कि मैं किसका साथ दूं, हज्जाज इब्न यूसुफ का या इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह का। मां ने पूछा, बेटा तुम्हें इतनी तो अक्ल और सूझबूझ तो है कि 2 में से हक पर कौन है? कहा हक पर तो अहले बैत किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जो खानदान में हज़रत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह वो हक पर है। हज्जाज इब्न यूसुफ तो जालिम है, मगर उसे इमाम उसे कहलवा के ये भेजा है ये आदमी के साथ, कासिद के साथ में अगर तुमने हमारा साथ दिया तो माल और दौलत से इतना माला माल कर देंगे कि तुम्हारी 7 नस्लों तक भी ये दौलत तुम्हारी खत्म नहीं होगी। और अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया और अहले बैत इकराम का तुमने साथ दिया तो इतना तुम याद रखना कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हारी बोटियां उड़ा देंगे और यहां तक कि तुम्हारी बोटी एक गोश्त का टुकड़ा किसी के हाथ पर नहीं आएगा। इस हालत में तुमको कर देंगे और फांसी की माचड़ में भी लटकाएंगे, जलील कर उसके बाद में तुम्हारी बोटी अलग कर देंगे। जब समझ नहीं आया जब ही तो आपके पास आए हो, आप ही मुझे हुक्म दीजिए कि मैं कहां पर किसका साथ दूं। ना भी ना मां बेटे से कहती कि बेटा 2 में से हक पर तो इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह और इनके साथी सब। कहा कि हां, तो बेटे जो हक पर है उसी को दो। तो मां फिर हज्जाज ने जो मुझको इस किस्म से धमकी दी उसका क्या? तो बेटे तुम जानते हो कि बकरी जब ज़िबा की जाती है और ज़िबा करने के बाद में जब उसकी रूह निकल जाती है, उसकी जान निकल जाती है, उसके बाद में उसकी बला से कि उसकी बोटी बनाए कि उसका कीमा करे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक जान निकलती तब है। अगर जान हक पर निकली है तो खुदा के दरबार में तुम्हारी इज्जत हो जाएगी, और जान अगर नाहक के ऊपर गुजरी है और तुमने गैर लोगों को तुमने साथ दिया है तो कयामत में भी तुम बड़े जलील हो जाओगे और खुदा के यहां पर तुम्हारी मौत भी काबिल कबूल नहीं होगी। अच्छा मां, तो फिर मैं आपके कहने के मुताबिक इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह का मैं साथ देता हूं। ये कहकर हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अपनी मां से कहते कि मां अब इतना है कि बस आप खड़े हो जाइए, मैं आपकी पेशानी को मैं चुम लूं। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो रस्सी बुनती थी उठकर खड़ी हो गई और खड़े होने के बाद में ऐसे बाहों को फैला दी, कहा मेरे बेटे करके। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब सीने से लगने गए तो क्या था कि जिस्म के ऊपर इनके बख्तर पहना हुआ था। जंग में जाने की तैयारी तो की थी, चाहे इधर जाए चाहे उधर, जंग में तो जाना ही था, इसलिए बख्तर पहन कर आए थे। जिर्रा जिसको कहते हैं, हाथ में तलवार भी बाजू पर रख ली थी, वो भी साथ में थी। मां ने जब देखा कि बख्तर पहन के आया है, नजर से तो नहीं दिखता था मगर सीने से लगाने गई तो बख्तर आड़ा आया, तो मां ने उनको धकेल दिया दूर, और धकेलने के बाद में मां ने कहा कि ये क्या बात है बेटा, दूर हटो तुम मुझसे। तो कहा मां क्यों हटा रही हो? कि मैं तो तुम्हारी दुआ का मुस्तहिक हूं। तो मां ने कहा कि बेटे एक तरफ तो तुम कहते हो कि जान अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने जाता हूं और दूसरी तरफ जान को बचाने के लिए जिस्म पे जिर्रा भी पहने हो, बख्तर भी पहने हो। समझ में नहीं आता कि सच क्या तुमने सोचा है। देखो कैसी मां थी अपने बच्चों के वास्ते। और हकीकत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक खातून आती है, एक औरत आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक छोटा सा बच्चा पेश करती है। दूध पीता बच्चा जो कपड़े में लपटा हुआ है, अभी कुछ महीनों का भी नहीं है, उसको लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करती। सहाबाए किराम सवाल करते कि क्या बात है खातून, तुम्हें क्या कहना है बहन तुम्हें? तो कहा कि मैं चाहती हूं मैं कि इसका बाप जो है ये तो गजवा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जंग में गया था, वो तो शहीद हो चुका है। अब इसकी एक लौते बेटे की मेरे पास ये निशानी है, मैं चाहती हूं कि इसको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में भेज दो, इनको भी कहीं काम पे लगा दो। अरे ये बच्चा क्या करेगा, ये छोटा बच्चा क्या करेगा? तो वो खातून कहती कि खुदा की कसम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी लगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब जंग में आप जाओगे तो साथ में बच्चे को साथ में लेके खड़े रह जाना, जहां देखोगे सामने से तीर आया तो मेरे बच्चे को सामने धर देना कि तीर उसके जिस्म पर आ जाए, बच्चा मेरा शहीद हो जाएगा तो उसके बाप को कम से कम उसके दिल को सुकून हो जाएगा कि मेरा बच्चा भी मेरे नक्शे कदम पर चलकर इस दुनिया को छोड़ कर आया है। ईमान की ये दौलत थी जिनके पास, इनके पास ऐसे आमाल थे। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि बेटे ये जब ईमान, तब तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह के नाम पर शहीद होना है तुम्हें, और फिर तुम जिर्रा पहनकर आते हो, जान बचाने का भी ख्याल तुम्हारा।
उसी वक्त ज़ेरे को निकाल कर माँ के कदमों में रख दिया और माँ के सीने से लगे माँ को पिशानी पर चूम लिया। माँ ने भी इनको चूम लिया और कहा कि बेटे मैं दुआ करती हूँ, अगर अल्लाह ने तुमको अगर जिंदा रखा तो तुम गाजी बनकर आना, अगर शहीद हो गए तो कयामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह की शान देखिए कि थोड़े मुट्ठी पर मुसलमान थे जो हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह और हक पर थे, उन लोगों के साथ में हजरत अब्दुल्ला भी इनके साथ तलवार लेके खड़े हो गए। जंग के मैदान में गए, थोड़ी देर में एक बहुत जबरदस्त इसे बम्बार्ड की है गोलेबाजी जो काबे की एक दीवार को भी तोड़ दिया हज्जाज इब्न यूसुफ ने। और उसी जगह के बाद में जो तामीर हुई है उसको आज ये कहा जाता है हतीम की जगह जो है, जो हज को गए हाजी हजरात, इनको मालूम है कि हतीम की जगह वही है जिसको आरस की तख्ती से बनाया गया हुआ है और काबे के अंदर का हिस्सा माना जाता है। उस दीवार को तोड़ दिया गया था और उसी मटीरियल से फिर काबे की तामीर की गई, इसलिए उस जगह को हतीम कहा जाता है। यही हज्जाज इब्न यूसुफ ने तोड़ा था और सहाबा किराम ने कहा था कि इसको जो है उसी हिसाब से आप इसको रख लो, अब इसको ज्यादा इसमें कुछ रद्द बदल करने की कोशिश मत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी थे और जिस वक्त आलम यह हुआ कि देखा इन्होंने कि जंग में खड़े हुए और जब गोलेबाजी शुरू कर दी तो इन्होंने हमला लेकर बाहर आया हरम शरीफ के और वहां जंग शुरू हो गए। और जंग जब शुरू हो चुकी है तो उसके अंदर हजरत अब्दुल्ला को जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए, बेहोशी के आलम में मक्के के दूर ले जाकर एक बड़ा दरख्त था खजूरी का, उस दरख्त के ऊपर हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश को लटकाई गई और वहां पर जो थोड़ी जान बाकी थी इनको फांसी दी गई। जब फांसी दी गई लाश लटकती है और हज्जाज इब्न यूसुफ घोड़े पर जब देखने आया और उसे कहा कि अब इसकी अंधी मां को बुलाओ और उसे बता दो कि हमने इसकी क्या आलम किया, हम जो सोचते वो करके रहते हैं। लिहाजा उनकी मां को हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाई गई और जब आई कहते मेरा बच्चा कहाँ है, तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने घोड़े पर बैठकर ही कहा कि देख है बूढ़ी औरत, ए अंधी औरत, ये लफ्ज है किताबों में, ए अंधी औरत देख ले तेरे बेटे का हमने दुनिया को बिगाड़ दी है या नहीं, देख जा करीब जा, नजर से नहीं आता तो हाथ लगा के छू कर देख ले कि हमने इसकी दुनिया को बर्बाद कर दिया नहीं है। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है जरा बताओ तो सही मेरा बेटा कहां पर है। इतना कहकर उसको जब करीब ले गए तो हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बेटे अब्दुल्लाह के पैरों को देख लिया और उसको चूम लिया। हज्जाज इब्न यूसुफ घोड़ा करीब लाकर कहता है कि बूढ़ी औरत, ए अंधी औरत, देख तेरे बेटे की दुनिया हमने बर्बाद कर दी या नहीं। तो हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी, फरमाने लगी हाँ ए हज्जाज, खुदा की कसम तूने तो मेरे बेटे की दुनिया को बर्बाद कर दी, मगर खुदा की कसम मेरे बेटे ने तेरी आखिरत को बर्बाद करके रख दी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबियों ने ये काम करके बताया। ईमान की दौलत थी इनके पास, माल और दौलत के पीछे अगर लगते तो हकीकत में के पीछे लग जाते, मगर नहीं, इनको चाहते थे कि आखिरत हमको मिल जाए। और आज ये जमाना जिस हम गुजर रहे हैं, हमें माल और दौलत की जितनी भूचाल जितनी पसंद आती है, इन नोटों को और इन करेंसियों को हम देखते हैं, उसके ऊपर हम जितने पागल हो जाते हैं, चाहे किसी किस्म का काम हो तो हम करने को तैयार हो जाते हैं। आज कई मुसलमानों की शराब की दुकान है, कई लोगों की, और एक जगह पर तो जुल्फिकार वाइन मार्ट बोर्ड हमने देखा। ताजुब की बात है कि ये शराब की दुकान के ऊपर हजरत अली करमुल्लाह वजहू की जुल्फिकार का नाम लिखा गया है। ताजुब की बात है कि इस किस्म के मुसलमान है कि जिनकी अकल बहर मार गई है, इनके दिमाग के ऊपर पत्थर पड़े हुए कि शराब की दुकान के ऊपर इस किस्म के दिन वालों के नाम रखते और इन नाम को बदनाम करने पर आमादा हुए। मगर ये दौलत कब तक की है? दुनिया बर्बाद कर देगी, आखिरत बर्बाद कर देगी। दौलत से किसी को फायदा पहुंचा नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि हक की कमाई कर दी और अल्लाह के वास्ते तुमने खैरात कर दिया, वही तुम्हारा माल है। बाकी की सारी दौलत जमा कर दो, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी औलाद इसी को बर्बाद करके रख देगी। यह हकीकत है और दुनिया के सामने वाकयात आपके और हमारे सबके सामने गुजरते हैं। एक वाकया और सुना दूंगी आपको, और ये वाकया है, ये मामला जो मैं कर रहा हूं, इसमें जो मैं चीज बयान करने चाहता हूं, इसका मकसद को आपके सामने खास तौर पर पेश करने की ज्यादातर मेरी कोशिश होती है। किताबों में जो साहबा किराम के वाकयात है, इसमें एक वाकया अजीब व गरीब है। हजरत अब्दुल्ला नाम, पहले कुछ नाम और था, मक्के मौसमा में रहते थे। जिस जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया है, उस जमाने की बात है।
حضرت عبداللہ کے دماغ میں ایک بات ضرور پیدا ہو گئی کہ ہم نے جو یہودی قوم میں سے تھے، کہ ہم نے جو توریت کتاب کے اندر جو کچھ پڑھا تھا اس کی چیزوں کو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھی ہے، لہذا ایمان صحیح ہے، اگر ہم یہ چاہیں اور ایمان قبول کر لیں تو بہتر ہے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اپنے چچا کے یہاں رہتے تھے، باپ کا انتقال بچپن میں ہو چکا تھا اور بچپن سے اپنے چچا کے یہاں پر رہتے تھے۔ چچا سے جا کے کہا کہ چچا جان آپ دیکھیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں سچائی ہے، اور ہم جا کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کر دین اسلام قبول کر لے تو اس میں آپ کی اور ہماری سب کی بھلائی ہے۔ جس وقت بات کہی تو چچا نے غصے میں آ کر کہا، غصے میں یہ کہا خبردار میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے نام لیا تو گھر سے نکال دوں گا، تمہیں بے گھر کر دوں گا، یاد رہے آئندہ کبھی ان کا نام میرے گھر میں مت لینا۔ حضرت عبداللہ خاموش ہو گئے، کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ ہمارے مذہب کو جھوٹ کہتا ہے اور اپنے مذہب کو سچ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ خاموش ہو گئے۔ سن کر کیا کرتے بیچارے ہو، بس اتنا سن کر خاموش ہو گئے۔ آخرکار یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، اور جب مدینے گئے تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھو مدینے میں بھی اسلام پھیلنے لگا ہے۔ اپنی چچا سے پھر جا کر کہتے ہیں اے چچا جو ہماری کتاب میں تھا کہ اس ملک سے ان کو نکال دیں گے لوگ، ہجرت کر کر دوسرے ملک چلے جائیں گے، لہٰذا مدینہ شریف پہنچ گئے اور وہاں کی بھی خبریں ہم کو ملتی ہے کہ دین اسلام وہاں تک بہت پہنچ چکا ہے، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کا بڑی عزت اور استقبال کیا ہے آپ کا، اور آپ کی بڑی عزت افزائی کی۔ بہرحال اللہ نے یہ سب کچھ سوچا تھا۔ میں بھی چاہتا ہوں چچا کہ آپ بھی چلیے میرے ساتھ، ہم دونوں جا کر دین اسلام مدینہ شریف جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اپنے دین کو قبول کر گئے۔ چچا نے کہا کہ آج پھر دوبارہ تو نے یہ کہا ہے، اب اس کے بعد کبھی کہنے کی جرت کرے گا تو یاد رکھنا میں تجھ کو اپنے ورثے سے نکال کے الگ کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے گئے چچا آپ بار بار یہ دولت کی بات کیا کرتے ہیں، آپ کیوں یہ دولت کی بات کرتے ہیں آپ بار بار؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اپنی جگہ پر، اب تو میں نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے کر دین اسلام قبول ہی کر لوں گا، چاہے آپ مجھے مال رکھیں یا نہ رکھیں، اپنے گھر میں اپنے رشتہ داری میں رکھیں یا نہ رکھیں۔ بے شک آپ کا احسان ہے کہ آپ نے بچپن سے لے کے یہاں تک آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھ کو بڑا کیا ہے، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، مگر یہ دین کے معاملات کے اندر تو میں آپ کی ایک مانوں گا نہیں۔ اب تو اگر آپ چلتے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں جا کر اپنی ماں سے اجازت لے کر میں مدینہ شریف پہنچ جاتا ہوں۔ رات کا وقت تھا، باغ سے آئے ہوئے تھے اور رات کا وقت تھا یہ، اور اس عالم میں یہ چچا کی اور بھتیجے کی بحث ہوتی ہے۔ چچا نے غصے میں آ کر یہ کہا کہ عبداللہ اگر یہی تم چاہتے ہو اور تم جا کر اپنا دین اور اپنا مذہب بدل کر لینا چاہتے ہو تو جاؤ، میں تم کو اپنے اس ورثے سے بالکل خارج کر دیتا ہوں، تم کو اس سے کوئی نسبت نہیں، یہاں سے ایک فوٹی کوڑی تمہیں مل نہیں سکتی ہے، اور تم اسی وقت میرے گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اگر تم نے یہی ارادہ کیا تو تم یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اچھا چچا اگر یہی بات ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ نکل کر جب روانہ ہونے لگے تو چچا نے کہا کہ عبداللہ ٹھہر جاؤ، تمہارے ہاتھ میں کنگن جو ہے سونے کی یہ بھی تم نکالو، یہ بھی میرے ہیں، یہ تمہارے جسم پر کپڑے ہیں یہ بھی میرے پیسے کے ہیں، اس کو بھی تم نکالو۔ یہ سب کچھ جو تھا جسم پر سب نکال کر انہوں نے چچا کے قدموں میں رکھ دیا، کہا کپڑے بھی نکالو، یہاں تک کہ جسم پر ایک کپڑا نہیں رہنے دیا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے اسی عالم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر آئے، اور جب گھر سے نکلے ہیں تو دوڑ کر، رات کا وقت تھا، اس زمانے میں کوئی اسٹریٹ کی لائٹ تو رہتی نہیں تھی گلیوں کے اندر الیکٹرک وغیرہ کی، تو گھر گھر کے اندر دیے رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے مشالے رہتی تھی، وہی چیز اسی چراغ سے روشنی پھیلتی تھی گلی اور کوچوں کے اندر، تو بالکل ایسی حالت، اور مکے میں تو خاص کر کے بہت بڑی تکلیف رہتی تھی، وہاں پر کوئی گلیوں کے اندر کوئی ایسی روشنی کا نشان نہیں تھا، لہٰذا ماں کا گھر کچھ دوری کے اوپر تھا۔ اب وہ کیا کرتے، اپنے جسم کو چھپاتے ہوئے ہاتھوں سے دوڑتے ہوئے اس گھر سے نکل کر اپنی ماں کے پاس پہنچے، اور ماں کے پاس بیٹھ کر اس طریقے سے آ کے بیٹھ گئے۔ ماں نے کہا بیٹے یہ کیا آئی ہے؟ تو ماں میں کیا کروں، تو ماں نے فوراً اپنی چادر جو تھی ان کے جسم پہ ڈال دی، پہلے کپڑے پہن لو، کپڑے پہن کر تیبند باندھ کر ماں کی خدمت میں بیٹھے۔ بیٹی یہ کیوں؟ کہ ماں میں سے بتاتا ہوں میں
میں نے اپنے چچا سے اسلام کی بات کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، مگر وہ چچا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ کہا ہے میں سمجھا، میں نے یہ سب چیز، مگر ماں میں تو آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے مشورہ لے لوں کہ میں دین اسلام قبول کرنے چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ اگر اس بات پر خوش ہیں تو میں اس کو جا کر مدینہ شریف چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کر یہ سب کچھ بات کرتا ہوں، میں اپنی آخرت کو سنبھال لوں، مجھے حق ہے۔ چچا نے تو ایک پیسہ بھی دینے سے انکار کر دیا ہے، یہاں تک میرے جسم کے اوپر جو جو چیزیں تھی سب اتار لی اور کپڑے تک مجھ کو یہاں سے اس کو محروم کر کے مجھ کو بھیجا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹے اگر دین کا معاملہ ہے تمہاری قبر میں میں سونے تو نہیں آنے والی، اگر تم کو صحیح لگتا ہے اچھا لگتا ہے تو بے شک میرے طرف سے اجازت ہے، تم جا کر اپنے ایمان کو تم قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی بات کو سنا اور اسی وقت ماں کا ہاتھ چوم کر وہاں سے نکل کر مدینے کی طرف سواری لے کر روانہ ہوئے۔ جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی کے پاس جس وقت پہنچے ہیں تو وہی چادر جو تھی جس کو انہوں نے دو ٹکڑے کر دیے تھے بعد میں، ایک کو کمر پہ باندھا تھا اور ایک کندھے کے اوپر، وہی میلی چادر پورے راستوں کے اوپر سے گرد و غبار اڑتا تھا، کچی ریت کچی زمین اور وہ مٹی اڑ اڑ کر جسم پر آتی تھی، بکھرے ہوئے بال، اور گرمی کی موسم، اور اس عالم میں مسجد نبوی کے دروازے کے پاس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مقدس کو دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ عبداللہ یہاں پر آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور دونوں باہوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں آؤ عبداللہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر اپنا سر مبارک کو رکھ کر خوب روئے، رونے کے بعد بھی جب اطمینان اور سکون ہوا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھ کر ساری داستان کو سنائیے کہ مجھ کو اس طریقے سے منع کر دیا گیا، کپڑے تک میرے چھین لیے گئے اور اس طریقے سے ماں کی ایک چادر کو دو ٹکڑے کر کر میں لے کر آیا۔ نام پہلے ان کا کچھ اور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پھر عبداللہ رکھا، پہلے کچھ اور نام تھا، کچھ مشرکانہ نام تھا، مگر اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حضرت عبداللہ رکھا۔ اور عبداللہ رکھنے کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو تم کو عبداللہ کہے گی مگر میں تمہیں دو چادروں والا کہوں گا، ذوالبجادین کے نام سے یاد کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لقب کو حضرت ذوالبجادین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر صحابہ کرام کے بیچ میں دریافت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چادروں والا کہہ کے پکارا ہے اور اسی سے میری بخشش کا مجھ کو راستہ مل چکا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد میں قرآن سیکھا، نماز سیکھی، مسجد نبی کے کونے میں بیٹھ کر یہ چیز کبھی کبھی تلاوت کرتے زور سے، کیونکہ قرآن سیکھتے تھے الفاظوں کو صحیح کرنے کے لیے، اور جب یہ قرآن پڑھتے تھے اور اکیلے میں ایک بار زور سے جب پڑھ رہے تھے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لاتے ہیں، ہاتھ پہ کوڑا تو رکھتے ہی تھے، جب آئے اور انہوں نے مسجد نبی میں کوڑا ایک بازو پہ رکھا اور دیکھا کہ حضرت عبداللہ کی آواز بڑی زور سے ہے اور قرآن زور سے پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف دو ایک صحابہ کرام جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ تمہاری آواز کو کم کرو، نماز پڑھنے والوں کو دخل ہو رہی ہے۔ اے عبداللہ تمہاری آواز کو کم کرو، نماز پڑھنے والوں کو دخل ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں تشریف فرمائے ہوئے تھے صحابہ کرام کے بیچ میں، حضرت عمر کو یہ پتہ نہیں تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ اے عمر اس کی آواز کو دبانے کی کوشش مت کرو، اس نے مشرک کے مال کو اپنے پر حرام کر دیا ہے اور اس کے اوپر اسلام کی آواز کو بلند کی، لہذا اس کی آواز کو دبانے کی کوشش مت کرو۔ عمر ابن خطاب نے ان کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری کتنی عزت کی۔ اس کے بعد میں تو حضرت عبداللہ کے دل میں ایک جذبہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نام پر اپنی جان قربان ہو جائے، اور دنیا میں کون تھا کہ جس کے لیے جینے کا سوال پیدا ہو۔ ایک دن کی بات ہے کہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے، جنگ کا اعلان سارے صحابہ کرام اپنا اپنا مال لے لا کر اپنے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جب مال اور دولت کو پیش کر رہے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو سب پیش کر رہے ہیں، ایک صحابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے کہتے کہ سرکار عبداللہ رو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر پہنچے ان کے پاس، عبداللہ تو رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیا بات ہے تجھے، کیا کسی نے کچھ کہا، کوئی تکلیف ہے؟ تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے بچوں کی طرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنسو پوچھے، فرمانے لگے عبداللہ ذرا بتا تو صحیح کیا بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
अर्ज करने लगे कि सरकार, जब आपने ऐलान कर दिया जंग के वास्ते तो गरीब से गरीब इंसान मुट्ठी भर खजूर लेकर भी यहां पर हाजिर हुआ है। सरकार, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो नादार इंसान सब कुछ छोड़ कर आया हूं। 2 ही चादर मेरे जिस्म पर अभी तक है और उसी को धो धो कर मैं पहनता हूं, कभी ये धोता हूं, कभी वो धोता हूं और उसी से मेरी जिंदगी बसर कर रहा हूं। सरकार, आप जानते कि मेरे पास तो एक पाई भी नहीं है। ये वो दरबार था कि जहां माल दौलत की कोई इज्जत नहीं थी, वहां तो इज्जत थी ईमान की और आमाल की इज्जत थी। और इसलिए तो जंग के मौके के ऊपर कुरान की तफसीर इब्न कसीर वगैरह में एक वाकया अजीब और गरीब लिखा हुआ है। बदर के मौके के ऊपर एक सहाबी का एक हाथ और एक पैर कटा हुआ है। वो घर में मदीने शरीफ में हिजरत करके गए, मदीने में घर में है और आलम इनका यह हुआ है कि वो बेचारे घर से निकलते भी नहीं थे मस्जिद नबी तक। कौन उनको पहुंचाए? उम्र भी बड़ी हुई थी, उसी आलम में बेचारे वो घर पर ही रहते थे। जब ऐलान हुआ है जंग का तो लोग माल दौलत, जिसके पास कुछ तलवार है, नेजे हैं, ढाल है, ये सब कुछ दे रहे हैं। कोई जिर्रा दे रहा है, कोई दिरहम और दिनार दे रहा है, कोई अनाज और कपड़ा दे रहा है। जिसके पास जो ताकत है उसके हिसाब से लोग माल दौलत जमा कर रहा है, ढेर लगा हुआ है। ये सहाबी को भी पता चला कि बहुत बड़ी जंग होने वाली है, लिहाजा मैं भी कुछ जाकर कुछ पेश करूं। तो जाकर एक बगीचा था, उसके मालिक को बुलाया और कहा कि भाई तुम मुझे अपने बगीचे में कुछ एक दिन के लिए काम पे लगा दो, जो कुछ तुम दोगे मैं मुट्ठी भर खजूर भी लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दो। इनको ये ख्याल कि बदर के जमाने का जो वाकया था कि लोगों को एक एक खजूर खाने मिली थी इस जमाने में, ऐसे आलम के अंदर ये होंगे मुसलमान, इनको ये मालूम नहीं था कितना सा ढेर लोगों ने लगा दिया है। लिहाजा वो बगीचे में जाकर वो कहने लगे मुझे काम दे दो। तो उस मालिक ने कहा भाई मैं तुम्हें क्या काम दो? तो कहा बावड़ी के ऊपर तुम मुझको एक तख्ता लकड़े का डाल दो और वहीं पर मुझको सुला दो और ये करो कि जो तुम्हारे बैल वगैरह या जो तुम्हारे जो कुछ जानवर जो है इसको तुम हटा दो और उसको दूसरे काम में, खेती के काम में लगा दो और मुझे हाथ पे डोल और रस्सी दे दो, मैं वो पानी भरकर निकाल के दूंगा और उस पानी को निकालकर तुम्हारी बावड़ी में से निकालकर तुम्हारी इस नहर के अंदर बहाना शुरू करूंगा। एक डोल पर जो तुम्हें देना है दे देना। उससे कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक डोल पर एक मुट्ठी खजूर मैं तुम्हें दे सकता हूं, मगर तुम्हारा तो एक हाथ कटा हुआ है, एक पैर कटा हुआ है, तो तुम 2 हाथ के बगैर तुम रस्सी खींचोगे कैसे? कहा इसकी फिक्र मत करो, मुझे ले चलो। अपनी बीवी से कहा और दूसरे साथियों से कहा कि तुम चलो। तख्ता उस कुएं के ऊपर, बावड़ी के ऊपर लटकाया गया, रखा गया और उस पर ये सहाबी को वहां जो माजूर थे उनको, अपाहज को वहां पर रखा गया। रस्सी जब दी गई है, एक ही पैर था इनका पूरा, एक तो कटा हुआ था। रस्सी के 2 अंगूठे और उंगली के दरमियान में रस्सी को रखते थे और इसे पकड़ते थे और एक हाथ जो था उसे पकड़ के फिर खींचते थे और अपने दांतों से पकड़ लेते थे और फिर यह हाथ पकड़कर फिर यहां से खींचते थे, फिर दांतों से पकड़ते थे। इस तरीके से भरी हुई डोल को बाहर लाकर और फिर पैर से धक्का मारते थे तो पानी जो था नहर में जाता था। एक डोल छोटी सी भरती थी, उसकी एक मुट्ठी खजूर इसका था और वो मालिक ने कहा था कि जो तुम ईमानदारी से कहो कि शाम मैं तुमको शाम को इसके पैसे लाके दे दूंगा, इसकी खजूरें। अब ये बेचारे सुबह से शाम तक मेहनत करने लगे। पानी जब डोल खाली जाती तब तो कोई तकलीफ नहीं होती थी, मगर जिस वक्त डोल को फिर पानी भरी हुई डोल को खींचना पड़ता था तो पैर के अंगूठे के अंदर छील पड़ गए, इसके अंदर जख्म हो गया, हाथ में जख्म हो गया, 2 दांत यहां पर शहीद हो गए, उसके अंदर भी जख्म हो गया और इसको निकाल कर बड़ी तकलीफ होने लगी। और शाम तक में तो ये था कि झड़वे हो गए, सब जल कर जैसे लाल हो गए, इस तरीके से सब जख्म से भरपूर हो गया। शाम को जब वो मालिक ने देखा तो कहा अरे भाई तुम मुझसे मानते तो मैं वैसे ही तुम्हें दे देता, ये तो तुमने बड़ी जहमत की है। कहा भाई जो कुछ भी है मैं हलाल की रकम लेकर देना चाहता था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, मैं कोई ऐसा वैसा पैसा ले जाने को नहीं चाहता। मेरे भाई मेरे मुस्लिम भाई हैं, उनको ही मुझको पैसा पहुंचाना। लिहाजा वो खजूरें जो उनको 50-60 डोल जो उन्होंने निकाली थी, उस 60 मुट्ठी भर खजूर एक चमड़े की थैली में बांध कर उनको दे दी गई। तो वो जाकर कुछ घर पे भेजा बीवी के साथ और दूसरे साहबी से कहा कि मुझको ले चलो, मैं छोटी सी गठरी लाया हूं खजूर की, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। शाम के मगरिब का वक्त हो चुका था, मगरिब की नमाज पढ़कर सहाबाए किराम बाहर आए तो देखा मस्जिद नबी के बाहर तो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, दूसरी तरफ अनाज और गल्ले का ढेर लगा हुआ है, सामने जिर्रा तलवार और ढेल के बाकायदा उसका जो ढेर लगा हुआ है। चारों तरफ देखा तो माल और दौलत का भूचाल लगी हुई है और इतना माल और दौलत लगा हुआ है कि जिसको देखकर ये सहाबी अपाद जो है उनकी आंख में आंसू आ गए। कहते मुझको वहां करीब मत लेके जाओ, मुझको यहीं पर रख दो। अरे इतना माल, मैं तो समझा कि मुसलमान अभी तक वही गरीब खस्ता हालत
हालत में होंगे, इसलिए खजूर लेकर आया। अब यहां तो इतना माल लगा हुआ है, मेरी मुट्ठी भर खजूर की क्या इज्जत वक्त हो सकती है। लिहाजा बस मुझे एक तरफ तो खुशी है कि मुसलमान इतने आसूदा हो चुके हैं, दूसरे तरफ से मुझे इस बात का गम है कि मैं ये इतनी मेहनत कर कर भी लाया हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसको पेश नहीं कर सकूंगा। और ये सुनकर इनके दिल में बड़ा दर्द था, रोना इन्होंने शुरू कर दिया। एक साहबी वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने सुना और उनसे कहा भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं। तो चाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात की कि सरकार एक अपाहिज साहबी जो बदर के मौके के ऊपर जो जंग में इनके हाथ पैर कट चुके थे, वो वहां पर मस्जिद नबी के पिछले हिस्से में रो रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठ कर तशरीफ लाते हैं और पूछते क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने कहा सरकार आपसे मैं क्या छुपाऊं। ये इतना कहकर चमड़े की थैली जो थी हुजूर के हाथ में दी कि इतनी सुबह से शाम तक सरकार देखिए मेरे 2 दांत शहीद हुए, मेरे जड़बा जो था वो बिल्कुल जल कर लाल हो चुका, और देखिए मेरे हाथ में कितने छाले पड़े, मेरे पैर के अंदर देखिए कैसी हालत हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये देखकर फरमाते हैं तो हुजूर फरमाते क्या बात है। मगर कहा कि सरकार आपने जब ऐलान किया मेरे कान पर भी बात पहुंची, मैंने चाहा कि जाकर मैं भी मुसलमानों की खिदमत करूं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करूं, लिहाजा ये कुछ खजूर में लेकर भी यहां पर आया। मगर माल का ये ढेर देखकर मुझे ये हुआ, सरकार रोते हुए कहते हैं ये कि मुझे ये हुआ, ये मुट्ठी भर खजूर मेरी इसने माल के सामने क्या इसकी इज्जत होगी, इसलिए मुझको बड़ा दर्द और गम हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यही बात है, सहाबा किराम से हुक्म फरमाया इसको लेकर मस्जिद दरवाजे के ओटी पर लेकर आओ। 2-3 साहबी उठाकर उनको लाकर मस्जिद दरवाजे के ओटी पर इनको बिठा दिया। सारे सहाबा किराम को आसपास जमा फरमाया, हुजूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुट्ठी भर खजूर सामने रखी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों में दुआ करता हूं तुम सब आमीन कहो। और इतना कहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर खजूर को उठाया और खजूर को उठाकर उस माल पर बिखेरते फरमाते अल्लाह ये मुट्ठी भर खजूर के सदके में बाकी के माल को तू कबूल फरमा ले। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान के ऊपर जितने सहाबा किराम थे जिन्होंने बहुत माल ला कर दिया था, उनको भी उनके भी बाल काटे खड़े हो गए और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। ये खुदा की कसम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क्या ये बेहतर है, शायद हो सकता है कि इनकी चंद खजूरों के सदके में हमारा माल भी जिसके अंदर जरा सा दाग भी होगा ये भी अल्लाह ने कबूल कर लिया। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला था, वहां पर तो ये चीज थी। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि सरकार मैं क्या करता, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो नादार में गरीब इंसान हूं, मेरे पास तो कोई ऐसी दौलत नहीं कि मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। हाँ सरकार एक बात जरूर है कि दिल में मैंने ये उम्मीद कर ली है कि मेरी एक जान है, इस जान को मैं अल्लाह के नाम पर शहीद कर दूं, कुर्बान कर दूं, बस यही मेरा ख्याल है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अच्छा यही बात है, तुम अपनी जान देना चाहते हो अभी जो जंग होने वाली इसमें। कहा कि सरकार मेरा तो यही इरादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया देखो सामने वो दरख्त है ना, उसके एक छील को या पत्ते को तोड़ के ले आओ। छीले पत्ते को तोड़ने के ख्याल से वो हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबी से उठकर गए और उसको थोड़ा सा तोड़ के लेके आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया अच्छा कि बैठ जाओ तुम सामने। बैठ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक जो थी इसको फाड़ कर उसके अंदर जैसे तावीज बांधते हैं ऐसे उस जो लकड़ी जो थी टुकड़ा या पत्ता इसको बांध लिया। कहा तुम्हारा हाथ बताओ, जैसे हाथ पर तावीज बांधते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधते हुए फरमाया कि अल्लाह अब्दुल्ला की जान को मुशरिकों के ऊपर तो हराम कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को सुनकर हजरत अब्दुल्ला रो दिए कि सरकार आप क्या मैं तो जान देने के लिए तैयार हूं और आप ये फरमा रहे हैं कि अब्दुल्ला की जान को मुशरिकों के ऊपर हराम कर दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ अब्दुल्ला तुमने मुशरिक के माल को अपने पर हराम कर दिया तो तुम्हारा खून भी मुशरिक के ऊपर हराम हो जाएगा। लिहाजा अगर तुम बुखार की हालत में भी मर जाओगे तो तुम्हारी शहादत की तुम्हारी मौत है, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें इसकी गवाही देता हूं। और उसी वक्त इनको बुखार शुरू हुई, 3 दिन इनकी बुखार रही और तीसरे दिन जब उनका इंतकाल हो चुका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गुस्ल दिया, कफन भी इनको दिया और जनाजा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका उठाया, जनाजे की नमाज पढ़ाई। और जिस वक्त इसको जन्नतुल बकी में इनको दफन करने को गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को हटा दिया और फरमाने लगे कि मुझको अंदर उतरने दो, अब्दुल्ला की लाश को मैं अपने हाथ से उतारूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ार अक़दस में इनके उतरे और हजरत अब्दुल्ला की लाश मुबारक को लेकर खुद अपने मुबारक हाथों से अंदर कब्र के अंदर रखी है। और जिस वक्त कब्र मुबारक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस हजरत अब्दुल्ला की लाश को जैसे रखी है, किनारे के ऊपर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो जलील कद्र साहबी है
वो कब्र के किनारे पर खड़े हुए, उनसे ये बर्दाश्त ना हुआ तो चीख मारकर कहते हैं, अल्लाह काश के इस अब्दुल्ला की जगह पर मैं होता तो कितना खुशकिस्मत हो जाता कि सरकार ने गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया, जनाजे की नमाज भी पढ़ाई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इनके लिए कब्र में उतर कर इनको कब्र में मट्टी के हवाले भी सुपुर्द खाक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो इतनी बड़ी इज्जत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और अल्लाह जल्ल शानू ने, क्योंकि जिससे माल को देखा नहीं और सिर्फ अपने आमाल को देखा, वो सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। एक वाकया मैं आपको और सुना दूं, 10 मिनट लूंगा मैं, और यह है बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती के, करीब 60 साल के पहले इनका इंतकाल हो चुका है। उनकी वाज में से ये चीज मैंने एक ही बार पहले यहां सुनाई है, वो भी शुरू के अंदर 6-7 साल के पहले, मगर चीज है बुजुर्गान दिन की बयान की हुई, इसलिए दिलचस्प है और हकीकत में इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज भी है। आखिर दुनिया की दौलत के पीछे मारे मारे हम फिरते हैं, इसका राज यही है बस कि हमको अगर अल्लाह तबारक ताला की एक आयत अगर समझ में आ जाए कि अल्लाह तबारक ताला ने, बेशक अल्लाह ने दिलों के इत्मीनान को सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही रखा है। दिल का सुकून जो है अल्लाह के जिक्र के सिवा और कहीं नहीं मिल सकता, और इसके लिए मस्जिद बेहतर जगह है, घर का कोना बेहतर जगह है। ना आपको होटलों में इसका सुकून मिल सकता है, ना आपको पार्क के अंदर इसका सुकून मिल सकता है, ना इसका थिएटर में आपको इसका सुकून मिल सकता है, न वीडियो या टीवी के अंदर आपको इसका सुकून मिल सकता है, ना आपको ड्रामा और दूसरी इन चीजों के अंदर आपको इसका सुकून मिल सकता है। दुनिया के जितने भी आप जितने एंटरटेनमेंट के जितनी भी चीजें हैं आप सारी तलाश कर लीजिए, मगर खुदा की कसम अल्लाह के जिक्र से जो दिल को इत्मीनान मिलता है वो किसी चीज से नहीं मिलता। और इसी पूरी बात को मेरी खत्म कर दूंगा मैं। यह है दिल्ली का वाकया, और हिंदुस्तान के बुजुर्गों ने लिखा है, मैं कोई पुराने जमाने की बात नहीं, 60 साल पहले की बात है ये, और उनकी तकरीर का ये निचोड़ जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उन्होंने वाकई बयान किया, मेरे अपने तरफ से नहीं कहता, जो उलमाए किराम है वो तो समझ जाएंगे। दिल्ली में एक शख्स था, बहुत मालदार था पहले। जब दौलत होती है तो इंसान के पीछे बहुत परवाने नीर बन जाके फिरते हैं, गुड़ होती है तो मक्खियां भी बहुत होती है, मगर जैसी दौलत हटी कि इंसान एक के बाद एक दुश्मन बन जाता है। अगर दुश्मन न भी बना तो जितनी दोस्ताना ताल्लुक ये सब टूट जाते हैं, सबके सब अलग हो जाते हैं। दुनिया का ये दस्तूर है, शुरू से आप आज तक देखिए और कयामत के दिन तक का ये दस्तूर है। माल और दौलत किसी के पास रही नहीं और रहने वाली भी नहीं है। ईमान एक ऐसी चीज है कि जो तुम इंसान के साथ, अगर कब्र में ईमान के साथ वो इंसान गया तो बेशक उसकी कब्र भी आसान, उसके मैशर की मंजिल आसान, और जन्नत के दरवाजे तक जाना भी उसके लिए आसान हो जाएगा। मगर जहां ये चीजों को देखते हैं तो अपने दिमाग में ख्याल होता है कि बावजूद इसके इतना सुनने पर भी हमारा ध्यान जो है, अगर एक तरफ ईमान रखा जाए और एक तरफ दुनिया की दौलत रखी जाए तो पहले दुनिया की दौलत को हम देखते हैं। इससे आप देख लीजिए कि दुकानदार जितने भी हैं, मस्जिद करीब है, अजान होती है और बिल्कुल नमाजी आदमी सर पे टोपी चढ़ाए वजू करके तैयार है और मस्जिद में जाने की तैयारी करता है, इतने में एक बड़ी पार्टी दाखिल होती है, घर के दुकान के दरवाजे के पास गाड़ी खड़ी होती है और उस पर से सेठ साहब उतरते हैं। अब यकीन होगा कि 2-5 लाख रुपए का बिजनेस देगा, असर की नमाज जा रही है, कोई बात नहीं, चलो अब कज़ा तो नहीं होती, जमात जाती है फिर पढ़ लेंगे, और ये ख्याल करके उस व्यापारी के साथ तो बातचीत शुरू कर देते हैं। और ये हो जाता है कि मगरिब भी चली जाती है इसमें, उसके साथ व्यापार के साथ बैठकर, और ये मामला हो जाता है कि मगरिब और ईसा की नमाज तक वो मामला पहुंच जाता है। और इसलिए होता है कि जितना ख्याल हमने सोचा था, अगर अल्लाह की जात को अगर उसको रज़ाक समझते तो ये व्यापारी को कह देते कि 10 मिनट के बाद मैं आता हूं, और हमने ये समझा कि दुकानदार जो है, ये व्यापारी जो है, ताजिर है, ये हमारा रज़ाक है, इसलिए हमने इसकी इज्जत कर दी, असली रज़ाक को हमने बुला दिया। मुझे याद है हमारे ख्वाजा साहब वड़गादी पर जो रंग की दुकानें हैं वहां पर वो काम करते थे, इंतकाल कर गए वो बेचारे अभी 2 साल के पहले। इनकी कई चीजें मैंने आपके सामने पहले भी पेश की है। वो ड्राइवर थे हकीकत में। कभी दोपहर के टाइम पर ये होता कि सेठ साहब जब खाने को जाते तो वहां एक लॉज थी पहले, उस लॉज में खाने को जाते तो 1-1.5 घंटा आराम करके आते, तो उस वक्त ख्वाजा साहब को दुकान सौंप के जाते। मगर वो सेठ का टाइम ये था कि सामने मस्जिद थी, शाफी मस्जिद, 1:10 की नमाज होती थी, 7 तार की गली में, वहां पर 1:10 की नमाज होती थी, नमाज पढ़ ले, इसके बाद में 1:30 बजे ख्वाजा साहब आ जावे, इसके बाद में सेठ साहब खाने को जावे।
ये इनका पहले से उसूल था। या घर करीब होगा या कोई लॉज होगा, खुदा को मालूम, मगर 1.5-2 घंटे के बाद भी फिर वो आते थे। एक दिन की बात है कि सेठ साहब किसी काम के लिए किसी मीटिंग में चले गए, छोड़कर उनसे कहा कि तुम दुकान पे चले जाओ, मैं भी आता हूं। इतना कहकर सेठ मीटिंग में गए, बहुत देर तक नहीं आए। जब बहुत देर तक नहीं आए तो दुकान पर बिचारी बैठे रहे। अब अजान हो गई, अजान की आवाज कान पर आती, मगर उठ के जाते ने, दुकान का माल है, हिसाब किताब है, सब कुछ है, दुकान बंद करके भी जा नहीं सकते। लिहाजा वो बेचारे ख्वाजा साहब दुकान पर ही बैठे रहे। 2-2:30 बजे सेठ साहब बाहर से आए, और उस जमाने में घोड़ा गाड़ी की भी चलन थी, घोड़ा गाड़ी में आए और आकर उनसे सेठ ने उनसे पूछा, खाना खाया ख्वाजा तुमने? कहा कि नहीं। अच्छा, नमाज पढ़कर आए कि नहीं? तो कहा नमाज भी नहीं पढ़े। अरे तुमने नमाज क्यों छोड़ दी? वो हिंदू साहब थे, वो हिंदू साहब है। वो कहते हैं, अरे तुमने ख्वाजा नमाज क्यों छोड़ दी? नमाज के लिए तो मैं तुमको हर वक्त भेजता हूं, आज तुमको चला जाना था। कहा दुकान पर कौन ध्यान रखता? अरे ख्वाजा तू मेरे को समझाता है, अरे जिसकी तू इबादत करता वो मेरी दुकान की हिफाजत करता, तो नमाज के लिए चला जाता। ये हिंदू साहब कह रहे हैं, आज भी वो हयात है वो साहब। ख्वाजा साहब का इंतकाल हो गया। मालूम कहने का मकसद ये कि गैरों के नजर के अंदर तो इतनी इज्जत है इस बात। हमारा मुसलमान जो होगा वो ये चाहेगा कि व्यापारी आ गया तो हमको पहले इसको देख लो, तिजारत का मामला पहले, इबादत का मामला बाद में। बात ये हुए थे, गरीब हो गया, गरीब होगा तो एक एक करके छटके सब चले गए। अब वो बड़ा परेशान रहा। जब माल दौलत होता है तो थिएटर याद आते हैं, रात की क्लब ही याद आती है, नाइट क्लब याद आती है, खाना पीना होटलें अच्छी याद आती है। कोई बीड़ी पिलाने वाला नहीं, अगर आप बीड़ी भी मांगेंगे तो कहेंगे भाई नहीं है, भाई खलास हो गई है। नबी पाक रस्म फरमाते हैं कि खुशी के मौके पर तुम खुदा को याद करो तो तकलीफ के मौके पर खुदा तुमको याद करेगा। एक बार ये हुआ कि एक आलिम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 दिन का वजीफा देता हूं मैं तुम्हें, मगर शर्त यह कि दिल्ली की जामे मस्जिद के जो पख्तियां हैं उस पर जाकर बैठ पढ़ो, उसके सहन में। जब वहां जाकर पढ़ोगे तुम बार पख्तियों के ऊपर, बाहर की जो सहन उस पर, 3 दिन में एक बुजुर्ग तुम्हारे पास आएंगे जिसका नाम खिजर अलैहिस्सलाम होगा, और वो तुम्हें जो तुम मांगोगे खुदा से वो दुआ कर देंगे और वो दुआ उनकी कबूल हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ये साहब ने वजीफा शुरू किया, वजीफा शुरू कर दिया। वजीफा करते करते ये हुआ कि माल दौलत आ जाए कहीं से, मालदार बन जाऊं, यही ख्याल था इनका। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, कुछ नहीं हुआ। तीसरा दिन जब वो आए तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम इनको पख्ती चढ़ते हुए नजर आए, हाथ पे बड़ी लकड़ी, ऊंचे से सफेद लिबास, और जब वो पख्तियां चल रहे थे तो उस वक्त इन्होंने देखा कि शायद यही ये वजीफा पूरा हो चुका था, और उठकर दुआ मांगकर चलने की तैयारी करते थे कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम करीब आकर उनको सलाम की, और सलाम के बाद में कहा कि जब क्या तुम चाहते हो बताओ, तुम्हारे दिल की कौन सी आरज़ू है? तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं मालदार बन जाऊं, मेरे पास दौलत आ जाए तो सब कुछ हो जाए, क्योंकि दुनिया दौलत की है। जब तक मेरे पास दौलत थी तो मेरे इर्द गिर्द काफी लोग थे, अब तो मैं गरीब बन चुका तो मेरे पास कोई नहीं आता। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने 3 दिन का जिक्र तो कर ही लिया है, अब एक काम करो, 3 दिन का मौका मैं तुम्हें देता हूं। पुरानी दिल्ली का जमाने का, नई दिल्ली थी भी नहीं उस वक्त, पुरानी दिल्ली का वाकया। जाओ बेटे तुम पूरी दिल्ली के अंदर चक्कर काट के आ जाओ, एक एक आदमी की तलाश करो जो तुम्हें वहां दिल्ली का ज्यादा से ज्यादा तंदुरुस्त और मालदार आदमी तुमको नजर आ जाए और तुम्हें लगे कि यह आदमी सबसे ज्यादा सुखी है, उसका तुम नाम लेकर आओ। मैं खुदा से दुआ करूंगा अल्लाह तुमको उसके जैसा ही बना लेगा, मगर तलाश करके आना पूरी तरह से। एक बार और मांगने के बाद फिर उसको वापस नहीं कर सकते और फिर जिंदगी वैसी काटनी पड़ेगी, इसलिए पूरा सोच कर कदम उठाना। वो कहते अच्छी बात है, और दुनिया में सुखी कौन है भाई? तीसरे मकान को तलाश की तो वहां मालूम पड़ा कि औलाद भी है, सब कुछ है, मगर ये मियां और बीवी दोनों को ऐसी बीमारियां लगी पड़ी है कि वो बीमारी की वजह से वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। चौथा मकान तलाश किया तो बताया किसी ने कि गले में कैंसर लगा हुआ, खाना हलक से नीचे नहीं उतरता। पांचों को बताया तो बीवी की बीमारी का आलम बताया, छठों को बताया कि इनकी औलाद बिल्कुल नाफरमान। मतलब कि ये सभी के सब जितने थे सब दुखी, परेशान और मुसीबत ज़दा सब के सब नजर आए। हमें बचपन में एक वाक्या स्कूल के अंदर सिखाया जाता था, बादशाह बीमार हुआ, बहुत एक हकीम ने कहा कि इसको जो बिल्कुल खुशहाल इंसान हो, सुखी इंसान, उसका एक पहरन ला के दे दो।
हुक्म कर दिया बादशाह ने कि जाओ तलाश करो ऐसा पहरन मुझको मिल ले, और वो पहनने के बाद ही मेरी तबीयत अच्छी। और वहां जाके उसे क्या देखा, एक दुकान थी जिसके 3-4 गाले थे, बहुत तंदुरुस्त खूबसूरत से गल्ले पर खड़ा है। मुसलमान नहीं थे वो, गैर मुस्लिम थे, दुकान के ऊपर खड़े हैं। इसे देखा कि कम से कम इसको भी देख ले। दुकान के फुटपाथ के ऊपर सामने आकर खड़े होकर वो देख रहे हैं कि भाई ये बहुत मालदार आदमी सही है। सुबह से शाम तक व्यापार तिजारत उसकी बहुत अच्छी रही, बहुत घोड़ा गाड़ी आकर खड़ी हुई, माल लेकर गए, बड़े बड़े मालदार लोग आते थे। और ये सब कुछ देखकर इसे कहा कि वाकई में ये आदमी सही है। नौकर भी उनके साथ खुशहाल थे, नौकर दूध लस्सी लेने के लिए आते थे। आज जैसे चाय का व्यवहार है, उस जमाने में दूध और लस्सी पिलाते थे। तो दूध लस्सी लेने के लिए नौकर आते, उनको पूछते सेठ तुम्हारा कैसा है, अरे राजा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। यानी नौकर भी इसकी तारीफ करते थे। बीवी बच्चे का, शाम को इसकी बीवी आएगी, देख लेना कितनी खूबसूरत बीवी है इसकी, ये सब कुछ बताया। आखिरकार ये हुआ कि शाम को घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई, बीवी 2 बच्चे, घोड़ा गाड़ी वाला ये उतर कर अंदर बैठे, सबके लिए दूध और जलेबी वगैरह सब आया, सब खाते पीते बैठे। चाबी सब दे दी, भेज दी इनके साथ, इनको रवाना कर दिया। थोड़ी देर के बाद में वो दुकान का मालिक जो था, वो जब गाड़ी इनकी रवाना हो गई तो उसने फौरन उस आदमी की तरफ तवज्जो की और इसको करीब बुलाया। बुलाकर जब देखा कि इससे मुझको बुलाया है तो चलो पूछ ही लूंगा मैं, सामने जब चल के बुलाया तो मैं पूछ लूंगा इसको कि भाई तुम्हारी हालत क्या है। लेकर गए इसको दूध की दुकान में। दूध की दुकान में लेकर गए तो वहां पर दुकान खाली थी, रात का वक्त था, दुकान बंद करने की तैयारी थी। दुकान का मालिक जो था वो सब साफ सफाई में लगा था। कभी कुछ पियोगे तुम? का नहीं, गरीब था, पहले मालदार था, गरीब हो गया। हमारे एक आलिम ने हमको एक तरीका बता दिया, एक चीज रात को पड़ी थी, एक फकीर ने आकर हमको खबर कर दी। मैंने कहा मुझे मालदार होना है, सुखी होना है, तो कहा जाओ तुम दिल्ली में तलाश करके आओ, जो सबसे ज्यादा मालदार और खूबसूरत इंसान हो उसके जैसा हम तुम्हें बना देंगे, खुदा से दुआ करके। लिहाजा मेरी नजर आप पर पड़ी, आप तो हर तरह से खुशहाल हैं। वो कहते तुमको क्या लगता है? कब मुझे तो लगता है तुम्हारे नौकर चाकर, बीवी बच्चे, तुम्हारी तंदुरुस्ती, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारे लोगों के साथ रहन सहन सब कुछ बहुत अच्छा है। सुबह से मैं शाम तक यही खड़ा रहा, भूखा प्यासा। कहा फिर दूध तो पी लो, और दूध पिलाया जबरदस्ती। फिर उससे कहा कि चलो तुम बाहर, ले जाकर एक सड़क के किनारे पर खड़े होकर उसको बातचीत शुरू की। कहा तुम समझते हो कि दुनिया इस दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान हूं, मगर मालिक जानता है कि सबसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान मैं हूं। खुदा ने सब कुछ दिया आपको, कहा सब कुछ ठीक है, मगर जानो एक बात मैं तुम्हें बताता हूं कि जिस बीवी को तुमने देखा वो एक वक्त में ऐसे बीमार हो गई और बीमारी के आलम में उसकी मौत करीब थी, तो उससे आकर मुझको बुलाया और खूब रोने लगी, बिल्कुल दुबली पतली, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं। आखिर सभी ने कह दिया कि इसकी मौत करीब है। 2-4 दिन की मेहमान थी, सांस बहुत फूलती थी, कभी बेहोशी का आलम हो जाता था। उस आलम में भी रोती थी और रोते हुए एक बार मुझसे कहा, मैंने कहा कि आखिर तुम्हारे दिल में क्या गम है? कहा हर मर्द जो है बीवी के मर जाने के बाद वो दूसरी शादी कर लेता है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद मेरी जगह पर कोई और सौकर मेरे मरने के बाद में भी तुम्हारे मेरी जगह पर तुम्हारे घर आ जाए। कहा अच्छा मैं कसम खा दूं? कसम खा लो तो तुमको यकीन होगा। मैंने कसम खाई, थोड़ी तस्कीन हुई, इसके बाद फिर भी वो इनकार करने लगी। दूसरे दिन फिर रोने लगी, कहती कि मुझको यकीन नहीं आता, मर्द कैसा भी है, हाँ कहेगा, कसमें भी खाएगा, मगर फिर 4-5 साल ऐसे रहकर उसके बाद फिर शादी तो करेगा, कुछ भी बहाना करके। कहा तुम क्या चाहती हो? उतने में एक हकीम बैठे हुए थे, उनसे कहा कि आपको ऐसी दवा दे दीजिए कि जिससे मेरे को सुकून हो जाए और मैं इसके बाद में शादी न कर सकूं, ऐसी आप मुझको कोई दवा घोलकर पिला दीजिए मुझे। कहा वो कल मैं नुस्खा लेकर आऊंगा। ऐसा नुस्खा इनकी बीवी के सामने बनाकर इनके सामने पिला दिया। वो मुसलमान हकीम थे, उन्होंने कहा कि देखो मैं खुदा को हाजिर नाजिर समझ के कह रहा हूं, इनको जो मैंने दवा दी है वो दवा ऐसी कि इसके बाद वो शादी नहीं कर सकते, ये दवा इनको मैंने पिला दी है। मर्द ने भी कहा अब तो तुम्हें तस्कीन हुई, मुझे दूसरी औरत का कोई ख्वाहिश नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बाद में दूसरी को तुम्हारी जगह पे ले आओ। हकीम साहब तो चले गए, कुछ दिन का इलाज देकर, वो बाहर के थे, चले गए। कुछ दिन के बाद ये हुआ कि 3-4 दिन तो वैसे ही कट गए, मगर 4 दिन के बाद मेरी बीवी को सुकून हो चुका था, उसके चेहरे पे खुशी थी। 5वें दिन से मैंने देखा कि उसकी तबीयत फिर संवर रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, चलती फिरती हो गई। अब ये आलम हुआ कि मैं उसके साथ कोई ऐसे बातचीत नहीं कर सकता था जैसे मियां बीवी की बातचीत।
खुदा ने कुछ मालूम ऊपर वाले की मर्जी थी उससे ये कहा। और हमारे अंदर ये नहीं कि हम दूसरी शादी करें, तलाक दे, ये सब हमारे मामलात नहीं है। दूसरी शादी भी इसकी नहीं करा सकता था तलाक देकर, कि हमारे यहां पर हमारे रिवाज के अंदर ये चीज नहीं। और उस जमाने में तो बड़ा कंट्रोल था इस मामले में। तो कहा साहब फिर 2 बच्चे हैं, इसका क्या? कहा ये मैं तुम्हें नहीं बताने चाहता, ये मेरे बच्चे नहीं है, बस इतना ही समझ लो तुम। का सवाल है, इसको तुम इस मुट्ठी पर बांध कर रख दो बस। उनके दिल में एक बड़ी टिस निकली, दूध का गिलास छोड़कर वहां से वो निकले मस्जिद की तरफ, दिल्ली की जामे मस्जिद के जब दरवाजे के पर पहुंचे, तो जब ऊपर की पक्ति पर जाके देखा तो जब खिजर अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे, हाथ में लकड़ी को लेकर, असा को लेकर। जाकर कदमों में गिर कर कहता है, ऐ खिजर, खुदा की कसम तुम क्या चाहते हो? तो खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, कौन सा मालदार तुम्हें बना दो? तो कहा मैंने सब कुछ तलाश की मगर कहीं माल के अंदर कोई खुशी नहीं। ऐ खिजर, अगर आप बनाना चाहते हो तो आपके जैसा मुझको बना दो, बाकी दुनिया के माल में कुछ भी नहीं है। और ये सब कुछ तलाश की मैंने, कहीं सुकून नहीं मिलता, सुकून तो सिर्फ खुदा की याद में मिल सकता है। मुझको मैं आपके जैसा बनने चाहता हूं, अगर ये बन सकता तो बना दो, वरना इस दुनिया से मुझको चले जाना ही अच्छा है। इतना कहा, उसका दिल आपे में नहीं रहा और उनके कदमों के ऊपर गिरा और वहीं पर उसकी रूह परवाज हो चुकी है। अल्लाह तबारक तआला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बरहमतिका या रब।